بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ الحمدللہ آج 29 جون 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 70 آپ سن رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیکچریٹ کے ٹاپکس کون کون سے زیادہ امپورٹنٹس ہیں اور ان میں کیسے آپ نے اسپیچ کرنی ہے۔ لیکچریٹ کے لیے آپ کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے سوچنے کا، اور پھر 2 سے 3 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں جس پہ آپ اسپیچ کرتے ہیں۔ تو ٹاپکس جو میں نے آج لکھوائے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو سب سے پہلے وہ ٹاپکس آپ لوگ بھی لکھ لیں۔ یہ کون سے ٹاپکس میں نے لکھوائے ہیں؟ آج کے جو لیکچریٹ کے ٹاپکس ہیں جو آئی ایس بی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے اہم ہیں، ان میں پہلا ہے مارشل لا از بیٹر اور ڈیموکریسی۔ دوسرا ہے عورتوں کو فوج میں آنا چاہیے کہ نہیں۔ تھرڈ ون از عورتوں کا شاپنگ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میڈیا کی آزادی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسلامی قانون ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے یا نہیں۔ کرکٹ ٹیم کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم میں مار یا پیار؟ کیا موجودہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ اردو زبان۔ اور آخری ہے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کا ذمہ دار حکومت یا عوام؟ یہ بیٹا یہ آپ نے جتنے ٹاپکس ہیں یہ لکھنے نہیں ہیں صرف، بلکہ اس پہ آپ نے تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صرف ٹاپکس کو عنوان نہیں یاد کرنے کے یہ ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر آپ نے اسپیچز لکھنی ہیں۔ اردو میں وہاں کرایا جاتا ہے، انگلش میں نہیں ہوتا۔ پہلا جو ٹاپک آپ نے انگلش میں بتایا اردو میں ہے کہ کیا مرسلہ بہتر ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام ٹاپکس لیکچریٹ کے ٹاپکس ہیں، اور آپ نے ڈسکشن بھی پریکٹس اسی پہ کرنی ہے۔ ڈسکشن کے 27 ٹاپکس میں نے آپ کو لکھ کے دیے تھے، تو وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہمارا گئے ہوئے فوٹو اسٹیٹ کرانے کے لیے، جب وہ آتا ہے تو وہ ڈسکشن کے 27 ٹاپکس وہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کو فائدہ دے سکیں۔ تو جو یہ 10 ٹاپکس لکھے ہیں ابھی یہ 9 ہیں، 11 ٹاپکس، یہ 11 ٹاپکس لیکچریٹ کے، اس پہ آپ نے ڈسکشن بھی کرنی ہے اور ساتھ اس پہ آپ نے اسپیچ بھی کرنی ہے، لیکچر بھی دینا ہے۔ اور لیکچریٹ میں آپ نے لیکچریٹ کا مطلب لیکچر سے نکلا، لیکچر دینا ہے۔ لیکچر یعنی ہمیں بریفنگ دینی ہے، اور لیکچر میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت شور شرابہ نہیں ہوتا۔ لیکچر آپ سمجھے کہ ٹیچر ہیں، ٹیچر کیسے ہمیں ٹیچ کرتا ہے، کلاس میں کیسے ایک لیکچرار لیکچر دے رہے ہیں، اس انداز میں آپ نے اس پہ لیکچر دینا ہے۔ اگر اسپیچ کا انداز ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے۔ ایک اسپیکر ہے، جس طرح میرے اسٹوڈنٹ ہیں ملٹری کا جیلم سوئی اور مری کے اچھے اسپیکر ہیں، تو وہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے اسپیچ کرنے کا، اگر وہ اس پہ کر سکتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ تو یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر جوش و خروش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے، کیونکہ یہ تو بیسیکلی لیکچریٹ ہے ہی لیکچریٹ۔ لیکچر آپ نے دینا ہے، ایک لیکچرار کی طرح ہمیں لیکچر دینا ہے، بریفنگ دینی ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ یہ آپ کیا سمجھیں اور ہمیں کیا آپ سمجھا رہے ہیں، میسج کیا کنوے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ آئیں، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ آنا چاہتے ہیں؟ جی پہلے اپنا نام بتائیے، صرف نام بتانا ہے اور ٹاپک بتانا ہے۔ جمہوریت بہتر ہے یا ماشاء اللہ؟ جی جمہوریت بہتر ہے یا ماشاء اللہ؟ جواد؟ میرے خیال میں جمہوریت بہت بہتر ہے ماشاء اللہ کی بنسبت۔ ماشاء اللہ کا مطلب ہے نو لا۔ جب کبھی بھی ماشاء اللہ جاتے ہیں تو اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا جو اس ملک کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس ملک کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور سفارتی سطح پہ جو بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ دن بدن کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ ملک کی جو مین ترقی ہوتی ہے وہ تو امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ہوتی ہے، تو اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ملک کی جو یہ اکانومی جو مین ریزن ہے کہ ہماری اکانومی کافی لو ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ جو ماشاء اللہ ہے۔ دنیا کے جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں اکثر جو ترقی ہوئی ہے وہ جمہوری دور میں ہوئی ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کی تعریف اس طرح ہوتی ہے کہ دا گورنمنٹ آف پیپل از دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ اس ایسے گورنمنٹ کو جمہوریت مطلب ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو دور تھے تو اس کی جو مین روح تھی وہ بھی جمہوریت تھی، اور اس وقت کی جمہوریت یہ تھی کہ مطلب ہے کوئی بھی ایک عام شخص اس وقت کے خلیفہ وقت جو ہوتا تھا اس سے کسی معاملے کے بارے میں بھی وہ پوچھ سکتا تھا کہ یہ کام کس طرح ہوا ہے اور اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، اور اس چیز کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور اسلامی جمہوریت میں جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کی ترقی ہوتی ہے، چاہے وہ علمی حوالے سے ہو یا معاشی حوالے سے ہو یا سیاسی یا سماجی حوالے سے ہو۔
यही मेन सोच होती है एक इस्लामी जमहूरी रियासत की। तो इसलिए अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाए तो इससे हमारे जितने भी बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, और माशाल्लाह जो है वो कभी भी मुल्क के लिए तरक्की का बायस नहीं बन सकता। जी बहुत अच्छे, आप देखें 2 मिनट और कुछ सेकंड बात किए, बहुत अच्छी की है, गुड शाबाश। नेक्स्ट आप आ जाएंगे। जी पहले नाम बताइए। तलहा अहमद। तला अहमद जी सर। जी, किस टॉपिक पे बात करेंगे? सर मेरा ये सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक, चलें थोड़ा इख्तिलाफ है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मुल्क में माशाल्लाह बेहतर है या जमहूरियत। सबसे पहले तो हमें ये सब देखना चाहिए, ठीक है माशाल्लाह के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान माशाल्लाह का ये होता है कि आपके मुल्क की जो इकॉनमी होती है उसको बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस लग जाती है, मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते इस डर से कि इनके मुल्क में माशाल्लाह लगा हुआ है, ये किसी भी वक्त हमारी सनत के ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमारी फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं करते मुल्क के अंदर जब माशाल्लाह होता है। लेकिन हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम मुल्क को संभालना होता है, आवाम को संभालना होता है, आवाम की खिदमत करना होता है, उनको एक सीधा रास्ता दिखाना होता है। आवाम का काम क्या होता है कि वो एक अच्छी आवाम भी बनकर दिखाए। सारा काम हुकूमत नहीं कर सकती अकेले पर जब तक आवाम उसका साथ नहीं देगी। अब पाकिस्तान की आवाम कैसे है आप सब जानते हैं। पाकिस्तान की आवाम के बारे में इंतहाई मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तानी आवाम बहुत ही बुरी आवाम है, हर लिहाज से बुरी आवाम है। अगर 100 में से 20 बंदे अच्छे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि 100 बंदे सारे अच्छे हैं। बहुत ही गंदी आवाम है, हर गलत काम पाकिस्तानी आवाम इस वक्त कर रही है। मिलावट करना जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, हर चीज़ में मिलावट करके बेच रही है। गालियाँ देना, मिलावट करना, जिना करना, हर कोई एक फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तानी कौम पीछे रह गई हो गलत काम में। हर गलत काम ये कौम कर रही है, हुकूमत नहीं संभाल सकती, हुकूमत सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा सकती है। अब इस कौम को या तो आप मुल्क के अंदर पूरा, अगर आप कहते हैं कि मुल्क में इस्लामिक डेमोक्रेसी, मैं इस्लामिक डेमोक्रेसी के बिल्कुल साथ हूँ। इस्लामिक डेमोक्रेसी फिर ये भी कहती है कि अगर कोई बंदा कोई गलत काम करता है तो उसकी इस्लामी सजाएं हैं। आप मुल्क में इस्लामी सजाएं क्यों नहीं लेकर आ रहे? आप जरा सिर्फ 2 बंदों के हाथ काट दो चौराहे के ऊपर, फिर देखते हैं कि तीसरा बंदा कैसे गलत काम करता है। जब आप हाथ काटने की बारी आती है, जब गर्दन काटने की बारी आती है, तब आप कहते हैं कि ये इंसानी कानून के खिलाफ है, नहीं करो, जुल्म है ये। यहाँ पर आप इस्लाम को भूल जाते हैं। ये है इस्लामिक डेमोक्रेसी। कोई गलत काम करे उसको चौराहे के ऊपर ले जाकर उसके साथ उसकी इस्लामी सजाए के मुताबिक डील करना चाहिए, ताकि तीसरा बंदा देखे वो इबरत हासिल करे। कोई फांसियाँ हो रही हैं, कोई पता नहीं चल रहा किसको फांसी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने 4 बंदों को फांसी दे दी, फांसी नहीं दे दी उसको निकाल देते हैं साइड पर। फांसी भी सामने देनी चाहिए मुल्क में। अब पाकिस्तानी अवाम का सिर्फ यही सोल्यूशन है। मेरे पास बातें बहुत ज़्यादा है करने की, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दिया गया है। मैं कहता हूँ मुल्क में इस्लामिक या तो डेमोक्रेसी फुल तरीके से आ जाए, जैसे इस्लाम है बिल्कुल इस्लाम के ऊपर चलें, मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर चूंकि आप इस्लाम की डेमोक्रेसी आ जाए, आप लोग सारी पोजीशन बैठ जाती है जुल्म है जी, जुल्म है। अगर जुल्म नहीं, अगर फिर आप मुल्क में इनडायरेक्टली मार्शल लॉ लगना चाहिए। मुल्क में हो इस्लामी डेमोक्रेटिक, इस्लाम की हुकूमत हो, डेमोक्रेसी हो मुल्क में, लेकिन उसको पीछे से कंट्रोल जब फौज कर रही होगी तो फौज के भी कवानीन बहुत सख्त हैं, फौज के बहुत अच्छे कवानीन हैं। आप आगे डेमोक्रेसी दिखाएं, पीछे मार्शल लॉ लगाएं, इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा दें मुल्क के अंदर। ये अब यही पाकिस्तान को संभाल सकता है। या तो सिर्फ इस्लामिक डेमोक्रेसी ले आए, हर जुम्मे का, जैसे हमें सर ने कहा कि हर जुम्मे पर जिसने गलत काम किया उसे इबरत बनाएं। आप इबरत नहीं बनाएंगे, बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़्यादा अयाश कौम है पाकिस्तानी, हर गलत काम कर रहे हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते। मुल्क में कोई कानून नहीं है, 2 दिन के लिए जेल में जाते हैं, वापस निकल आते हैं, 2-3 दिन कोई काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जेल में गए होते हैं। माशाल्लाह अब या 2 हल हैं, या इनडायरेक्टली मार्शल लॉ लगे मुल्क में कि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत हो उसको मार्शल लॉ सपोर्ट कर रहा हो, और या फिर फुल इस्लामिक डेमोक्रेटिक हुकूमत लेकर आएँ और जो सा है जो सजाएं इस्लाम के मुताबिक हैं वो लोगों को दें, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो और पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बन सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आप आ जाइए शहीरा आ जाओ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इस्लामी कानून।
मुल्क में इस्लामी कानून होने चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जब क़याम में आया था 14 अगस्त 1947, हमने अपने मुल्क को इसलिए हासिल किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे लिए एक ऐसे मुल्क को जिसमें हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जिधर हमें इस्लामी हुकूक दिए जाए और हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हमारे मुल्क में इस्लामी हुकूक होंगे और इस्लामी कानून होगा तो हमारे मुल्क में हर किसी को उसका सही हक मिलेगा। यहाँ पर अमीर को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है और गरीब को उसका हक नहीं दिया जाता, गरीब का हक खाया जाता है। तो इस्लामी हुकूक होंगे तो सबको उनका बराबर हक दिया जाएगा, इसलिए हमारे मुल्क के लिए इस्लामी कानून ज़रूरी है। जी बहुत अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगा वो है हमारी क्रिकेट में कौमी टीम की नाकामी। शेक्सपियर का कौल है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ जेलें वीरान होती हैं। हमारी टीम, हम पाकिस्तानी हैं और हमारी क्रिकेट टीम एक अच्छी टीम है जो कि 1992 का वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है और अब जो हमारी क्रिकेट की टीम की हालत है वो काफ़ी ख़राब है। तो इसका सबसे पहले क्रेडिट जाता है क्योंकि हमारे मुल्क में सिफारिश बहुत ज़्यादा है, मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होते। जो लड़का आता है बड़े लैंडलॉर्ड ख़ानदान का होता है उसकी जगह बढ़ जाती है और जो मेरिट पे होती है वो सिलेक्शन नहीं होती है। हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है मेरिट पे बिल्कुल सिलेक्शन नहीं कर रहा है और जो हमारे सबसे चीफ सिलेक्टर का काम होता है इसमें कि हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो क्यों बुरी होती जा रही है। और इसमें जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का वो होता है और चीफ सिलेक्टर का और कप्तान लास्ट में आता है। कप्तान क्योंकि कोच की दी हुई हिदायत पे काम कर रहा होता है और उसे जो हिदायत मिलती है वो उसके ऊपर काम करता है। तो मेरे हिसाब से जो हमारी क्रिकेट की नाकामी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चीफ सिलेक्टर का। थैंक यू जी। वेलकम बरकीम, आप आएंगे? नेक्स्ट आ जाए। आपने तो होगी नहीं स्पीच। शोएब, क्योंकि आप ICB में जाने वाले हैं। जी जी चलें नेक्स्ट। अभी मेरा टॉपिक क्या वो ये है कि मुल्क में माशाल्लाह होनी चाहिए या जमहूरियत। शोएब आपका नाम है बेटा। जमहूरियत तो बेहतर है या मार्शल लॉ? तो आप किस क्या में बात करेंगे? मेरे ख्याल से जब मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं और मुल्क में अच्छी हुकूमत ना हो तो उस वक्त माशाल्लाह ज़रूर नाक़िस होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त मुल्क के तमाम मईशत और हर चीज़ ख़राब हो जाती है और इसको संभालने के लिए माशाल्लाह बेहतरीन फैसला है, क्योंकि इसके ज़रिए मुल्क की तमाम फैसला फ़ौज के हाथ में आ जाती है जो कि उसको बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है। और अगर मुल्क के हालात सही हैं और सब फैसले करप्शन बिल्कुल नहीं है तो उस वक्त जमहूरियत ठीक है। अगर करप्शन है, नौकरियां कम है, वसाइल भी कम है तो उस वक्त माशाल्लाह लगना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे हो गए। ठीक है, गुड, थैंक यू। रिदा लास्ट में आपने इंग्लिश में करनी है, रिदा ने। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, आप आ जाए। दोबारा कर आपने की है, इधर किसने नहीं की? आ जाओ वॉलंटियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम संजार महसूद है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी से। आज का जो मेरा लेक्चरेट का टॉपिक है वो है हमारी कौमी ज़बान उर्दू। अपनी नेशनल लैंग्वेज होती है, उसी तरह पाकिस्तान की भी अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है वो वैसे तो उर्दू है, लेकिन ज़्यादातर हम प्रमोट इंग्लिश को करते हैं। और जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है और एक मशहूर अंग्रेज़ जो है लॉर्ड मैकाले, उसने हमारे ऊपर तालीम का निज़ाम जो नाफिज किया है, उसकी वजह से हम कहते तो वैसे हैं कि उर्दू ज़बान हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन दफ्तरों में अगर जाएँ या स्कूलों में जाएँ प्रमोट इंग्लिश को किया जाता है।
जो कि गुलामों वाली सोच है कि इंग्लिश अच्छी ज़बान है। हम जैसे भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, जैसे जापान जिसको राइजिंग सन कहा जाता है, उसने अपनी ज़बान में तरक्की की है। अमेरिका जो है, बाकी जितने ममालिक है, सब ने अपनी ज़बानों में तरक्की की है। और हमारे लोग समझते हैं कि 2 इंग्लिश के लफ्ज़ सीख लेते, फिर खुद को इस्मार खान समझने लगते कि हम जैसे ज़्यादा अफजल है बाकी लोगों से। तो इंग्लिश की मैं तो 2 मिसालें पेश करना चाहूँगा कि ये इतनी मुश्किल ज़बान नहीं है, क्योंकि हमारे पठान जो मसूद ज़्यादातर जो हैं, जो बेरोज़गार हो जाते हैं, वो जब दुबई जाते हैं तो उनको उर्दू बोलनी नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। तो वो वहाँ पर टैक्सी कैसे चलाते, सारे अंग्रेज़ों के साथ काम करते हैं। तो एक तो ये मिसाल है, दूसरी एक ये मिसाल मैं देना चाहूँगा कि हमारा एक मतलब मसूद वो था, अफसर था, वो फिर अमेरिका वो किसी काम से गया था, फिर वहाँ पर उसने टैक्सी पकड़ी थी, फिर वो आगे वाला अंग्रेज़ बैठा हुआ था, फिर उसको जगह बताइए कि जिस जगह पहुँचना था। फिर जब रास्ते में वो अंग्रेज़ से पूछ रहा था कि आप मतलब कौन सी कंट्री से, इंग्लिश में पूछ रहा था, फिर ये तो अफसर था, इसको तो इंग्लिश के साथ, फिर ने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर उसने पूछा कि पाकिस्तान में कौन से इलाके से या कौन से सूबे से। इसने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि अभी इसको क्या बताऊँ, इसको तो पाकिस्तान के बारे में पता नहीं होगा कि अभी कौन सा जगह बताओ। फिर मैंने इसको कहा कि आपको सुबह के पीछे के बारे में पता है, मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। उसने कहा बिल्कुल के पीछे के बारे में तो हमें पता है। फिर उसने कहा, अंग्रेज़ ने पूछा कि आप के पीछे में कौन से इलाके हो क्या हो। फिर इसने फिर दिल में सोचा कि अभी इसको इस चीज़ का कैसे पता होगा कि मैं के पीछे में इसके इलाकों का तो पता है नहीं, वैसे फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। तो इसने फिर भी बता दिया कि आपने फाटा के बारे में सुना, मैं ट्राइबल एरिया से हूँ। तो फिर वहाँ आगे वाला जो अंग्रेज़ बैठा था वो हंसने लगा और उसने गाड़ी आगे ले जाकर साइड पर पार्किंग में करा दी और उसको कहा कि यार थोड़ा उतर आओ। फिर उसको गले लगाया। उसने उसको कहा मैं भी मसूद हूँ ट्राइबल एरिया से। तो ये वजह ये थी कि पठान तो हमारे वैसे भी वज़ीरिस्तान वाले थोड़े सफ़ेद होते हैं और इंग्लिश उसने सीख ली थी तो अंग्रेज़ उसको नजर, वो लगती है अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ नज़र आ रहा था। तो यही की मिसाल मैंने ऐसे दी है कि इन्वायरमेंट अगर हमें मिल जाए तो इंग्लिश सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर हमें शामिल होना है तो अपनी उर्दू ज़बान को प्रमोट करना होगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है इंग्लिश ज़बान का या अंग्रेज़ बनने का, तो वो हमें इंग्लिश ज़बान एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रख देना चाहिए। जिसको शौक हो वो तो इंग्लिश सीख ले और पढ़े भी अगर उसको शौक हो ज़्यादा। और ज़्यादातर हमें अपनी उर्दू ज़बान को लागू करना चाहिए ताकि हमारे शहर की जो पढ़े लिखों की तादाद है वो भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उर्दू तो तकरीबन हर बंदे को आती है। बस सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैसूद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैसूदों में मेरे ऐसे दोस्त भी जो PhD डॉक्टर हैं और केमिस्ट्री में PhD हैं। केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। एक तरफ MSc केमिस्ट्री हो, एक तरफ MA इंग्लिश हो। MSc केमिस्ट्री MA इंग्लिश से बहुत टफ है। MSc केमिस्ट्री MA इंग्लिश की नज़र बहुत टफ है। और वो लोगों ने PhD केमिस्ट्री की हुई है और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से। और मैसूदों में ऐसे भी हैं, अभी बरकी देंगे थोड़े से हैं, टोटल बरकी मेरे ख्याल 10-12 हज़ार होंगे टोटल स्ट्रेंथ बरकियों की। और आर्मी में जनरल भी हैं, बरकी डॉक्टर हैं। और मेरा ख्याल है 95% लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं पूरे पाकिस्तान में। MBBS डॉक्टर बेताश हैं, तो मेहनत करते हैं ना। इलाका आपने देखा है कितना टफ एरिया है, लेकिन दूसरी तरफ मेहनत उनकी। एबटाबाद चले जाएं आप, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, आर्मी बर्नल कॉलेज, APS, ठीक है, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ ज़्यादातर लोग मैसूद हैं, तालीम दे रहे हैं। और फिर हमने ये जो कॉलेज बनाया, कैडेट कॉलेजेस इस एरिया में जितने हैं साउथ वज़ीरिस्तान में, और उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मैसूद, इंटरेस्ट लेते हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत है और अफवाज पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, ऑन करते हैं। तो सारे लोग एक तरह के नहीं होते, सोच बदलनी चाहिए और ये मैसेज कन्वे ज़रूर करना चाहिए पाकिस्तानियों को और दुनिया को कि सारे मैसूद एक तरह के नहीं हैं और सारे लोग एक तरह, सारे बुकटी एक तरह के नहीं हैं। मुहब्बे वतन बेताश हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं
اور افواج پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں اس کلاس میں میکسیمم لڑکے ایسے بھی ہیں جو محسود ہیں, میرے پاس ادھر آتے رہتے ہیں, بیٹھے برکی بیٹھے ہوئے. تو لوگوں کی سوچ چینج کرنی چاہیے. اس طرح بگٹیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بگٹی شاید پاکستان سے محبت نہیں کرتے. یہ بات سراسر غلط بات ہے. وہ بھی افواج پاکستان میں جا رہے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو جو دہشت گردی ہے جو پروموٹ کر رہا ہے, اس کا کوئی نہ مذہب ہے نہ کوئی علاقہ ہے, نہ اس کا کوئی دین ہے نہ اس کو کوئی ایریا ہے. یہ اس کا کوئی خطہ نہیں ہے, کوئی جغرافیہ نہیں ہے. تو ان کو ضرور ہمیں چاہیے کہ کرٹیسائز کریں, ڈسکریج کریں, جو بھی ہے, جو جس جگہ بھی, چاہے پاکستان میں دہشت گردی ہو, چاہے سعودیہ میں کر رہے ہیں, چاہے قطر میں کر رہے ہیں, تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. دہشت گردوں سے دنیا کو صاف ضرور کرنا چاہیے, اور کوئی کسی قسم کا رحم نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسرے جو پکچر میں نے بتائی وہ پکچر بھی حقیقت پر مبنی ہے. ٹھیک, وزیر ہیں, برکی ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میسیج میں نے آپ کو کنوے کیا ہے. جی نیکسٹ کون آئے گا؟ جی آج جو بچے, یہ کیا نام ہے, لاسٹ چیپ, یس ٹاپک کوئی اپنی مرضی کا نہ آ جائیں والنٹیئر. دیکھیے ہماری ویڈیو بن رہی ہے, پھر سننے والے کہیں گے والنٹیئر نہیں آ رہے. ہماری اکیڈمی تو بچے والنٹیئر آتے ہیں. چلو آ جاؤ, کسی ٹاپک پہ آپ انگلش میں کریں, بلکہ میں یہ تو کہوں گا آپ کی انگلش زیادہ بہتر ہے. گڈ, کلیپنگ دے دو اس کو. اس کے بعد پھر ہماری آئیں گی, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ آئیں گی فیمیل. میرا نام محمد عدنان ہے, اور آج میرا ٹاپک ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی اسلامی قانون سے ہی ہوگی. اور ہمارا عقیدہ بھی اسلامی ہے. ہم عقیدہ اسلام پر ہی اپنا سارا جو ہے تعلق مبین کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوٹلی طور پر اسلامی قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اور ہم نے اسلامی قانون کے مطابق ہی اپنے ملک کو چلائیں, کیونکہ اسی سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. تو جیسا کہ دیکھا جائے تو ابھی پاکستان میں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں ابھی اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ہمارے جو بڑے پولیٹیکل جو بھی ہیں حکمران ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. اگر یہ بات ہے اصل, سارے ملوث ہیں ہم, غیر اسلامی زندگی گزار سب پکڑے جائیں. پہلے پولیٹیکل حکمران ہی اس کی حراست میں آئے تھے. تو جیسا کہ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تو سارے کے سارے حکمران ہی چور ہیں. اگر اسلامی قانون نافذ کیا جائے تو پہلے ان کے ہاتھ کٹیں. اس لیے اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے پاکستان کو آج ترقی کی دوڑ میں اتنی رکاوٹیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اسلامی قانون نافذ کریں. یہ گڈ شاید. جی نیکسٹ آ جائیں. آپ نے نوٹ کرنے ہیں پوائنٹ, آپ سے میں نہیں لیتا یہاں ڈیمو, مجھے پتہ ہے, جان بوجھ کے نہیں لے رہا. سمجھ آئی بات؟ آپ نے نوٹ کرنا ہے, پریکٹس گھر میں کرنی ہے. سمجھ آئیے بات؟ I would like to start with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Respectable teachers, my gentle fellows, and dear students, Assalamu alaikum. My name is Junaid Sar, and today I'm here to present a presentation topic. The topic of our presentation is English is our international language. As by Mr. Aswan Yar says that English doesn't have importance, I totally disagree with this. Actually, he don't know about the world. He don't know about the people, and he don't know about the development of that very country who talk English. Now you can say and you can see English. Okay, let me tell you one thing. If English doesn't importance, so why it is called international language? And why we talk English in our country Pakistan? And now you can see English in your book and you read it.
with your core of your heart. And if you go more, you also talk with English. And why would you like to learn English? Yes, it's actually about totally depend on the thinking of people. I'm not saying too much. If I'm saying Urdu, for him, ये लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश को किस तरह लेते हैं. अगर आप देखें अपने मुल्क में, इवन अगर आपका प्राइम मिनिस्टर है, कोई बाहर फॉरेन का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे. क्यों करेंगे? हैव अ रोल, हैव इम्पोर्टेंस. इसकी एक इम्पोर्टेंस है. आप किसी मॉल में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे. इवन द प्रोडक्ट आर इन इंग्लिश, प्रोडक्ट्स भी इंग्लिश में होते हैं. अगर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस नहीं है तो आप क्यों उसको सीखना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं? इवन यू एफ एम सेइंग, अगर मैं कहूँ कि आप उसको दिल से सीखते हैं, और मैं ये भी कहूँ अगर जो बंदा इंग्लिश बोलता है तो आप इसको इतनी इंटेंशनली क्यों सुनते हैं? Because what? Because of it. Because of its importance. So change your thinking, change yourself. Thank you so very much. थैंक यू जी. आप आ जाए बच्चे. नेक्स्ट नहीं है जो ये लास्ट चैप शोएब के साथ जो बैठा बच्चा जी, आप आ जाए. आज का मेरा जो अनुमान है वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर मार होनी चाहिए या प्यार. तो मेरे लिहाज से ये मेरी जहाँ तक सोच जाती है तो मार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्यार होना चाहिए. क्योंकि मार से एक बच्चा जो है डर के वो दोबारा पढ़ाई भी नहीं करता. उसके जहन में खौफ आ जाता है कि मुझे जो गलती अगर मेरे से हो गई तो मुझे सर मारेंगे, डांटेंगे. हाँ, डांट जहाँ तक है वो सही है, लेकिन मार नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात ये, एक किसी ज़हीन ने मिसाल दी थी कि जो उस्ताद बहुत ज़हीन होता है और सही पढ़ाता है, कभी भी उसका तालिब इल्म नालायक नहीं होता. और एक उस्ताद अपना जहन जो है वो दूसरे के दिमाग यानी अपने दूसरे के दिमाग में नहीं डाल सकता. हर बंदे को, हर इंसान को, हर बच्चे को जो है ख़ुद अपनी तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो इसलिए उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी डांट थोड़ी देनी चाहिए ताकि समझ आ जाए उसको और सही हो पढ़ाई का. गुड शाबाश. कोई और आना चाहता है वॉलंटियर? आपने होगी, आ जाए, आ जाए. गुड शाबाश. यहाँ खुद वॉलंटियर हैं. My name is Hamzat Salim. I belong to Quram Agency. सर बिल्कुल सर, इंग्लिश इंटरनेशनल ज़बान है. सर जापान पे जब एटम बम अटैक हुआ था, उसके बाद जब जापान ने हार तस्लीम कर ली थी तो सर उसके बाद उसने सिर्फ एक डिमांड की थी कि मतलब हमारा ज़बान है सर, ये अपनी ज़बान में, मतलब हमारी तालीम जो है ये अपनी ज़बान में होनी चाहिए. सर जापान के प्राइम मिनिस्टर को तो सर इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी सर जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है. चीन भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है. सर बिल्कुल सर इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए क्योंकि सर ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. लेकिन सर हमें ये चाहिए कि सर सबसे ज़्यादा तवज्जो सर हमें अपने उर्दू पे देनी चाहिए, क्योंकि सर उर्दू हमारा दफ्तरी ज़बान है और तालीम भी सर जी हमारा उर्दू में होना चाहिए. क्योंकि सर जी हम वो चीज़ें नहीं समझते इंग्लिश में जो सर हमें सर पढ़ाते हैं, मतलब केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई. सर अगर ये उर्दू में होते तो सर जी हम आसानी से समझ सकते थे. सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर इंग्लिश भी सीखनी चाहिए और उर्दू पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. क्योंकि सर जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है सर उन्होंने अपनी ज़बान, मतलब अपनी तालीम अपनी ज़बान में हासिल की है, इसलिए उन्होंने तरक्की की है. और हमें भी चाहिए कि सर हम अपने मुल्क में, अपने दफ्तर में, हर जगह पे सर हमें उर्दू ज़बान राइज करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
आपने मुझे मिल के जाना है। हमजा खान। यस सर। जी तो मैं कुछ बताऊंगा उर्दू के बारे में। जी, किस पे टॉपिक बताएं। उर्दू की अहमियत। उर्दू पे बात करना चाहते यस हैं। सर, उर्दू की जी अहमियत वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, आप ये सोचिए कि इस उर्दू के लिए हमारे जो पिछले सरदार गुजरे हैं, उन्होंने कितनी जदोजहद की है इस उर्दू के लिए, कितने तनाज़े हुए उर्दू के पीछे, क्यों हुए? क्योंकि ये ज़रूरी थे। किस लिए हुए? क्योंकि यह इन्होंने कहा था कि इसको ही हमने प्रमोट करना है, उर्दू को ही प्रमोट करना है, किसी और ज़बान को नहीं। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि जापान का जो वज़ीर आज़म है उसको नहीं आती इंग्लिश। अब जापान कहाँ है? आसमान पर है और हम किधर हैं? बहुत फ़र्क है। क्यों? इसलिए कि हम अपनी ज़बान को छोड़ के दूसरे ज़बानों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश जो है ये हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शनल ज़बान है, मतलब ये हमारे लिए एक ऑप्शन है कि हमें सीखना है, आगे कुछ काम आ जाएगा, लेकिन प्रमोट हमने उर्दू को करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभी अगर मैं आप भाई बहनों से कुछ उर्दू के मुश्किल अल्फाज भी पूछ लूँ तो यकीनन किसी को भी नहीं आता होगा, ये मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ। नहीं तो चाहे आप सर से भी, अगर मैं सर कह दूँ कि इनसे कोई मुश्किल सवाल पूछे, मुश्किल है, मुझे भी नहीं आएगी। साफ बात है, पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए, फिर औरों के ऊपर बोलना चाहिए। मुझे भी नहीं आएगी। वो वजह क्यों है कि हम उर्दू को छोड़ के हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार अगर आपने मतलब सुपीरियर होना है तो जाओ इंग्लिश में बात करो। इंग्लिश ऑप्शनल ज़बान से हमारे लिए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए कि बोलना है तो यार उर्दू में बोलो, दूसरे को समझ आए, हमें समझ आए। ठीक है, अब ऐसी इंग्लिश में क्या फ़ायदा जो क्लास में एक लड़के को ही समझ आए। उर्दू जैसे हमारी कौमी ज़बान है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, किसको समझ नहीं आ रही है मुझे बता दें, सबको ही समझ आ रही है ना। तो इसलिए मेरे जितने भाई बहन हैं, उर्दू को प्रमोट करें, अपनी ज़बान को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें। और एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, रोनाल्डो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, फुटबॉल खेलते हो नहीं खेलते हो, बच्चा हो उसको कह दो कि बेटा आप रोनाल्डो को जानते हो, कहेगा हाँ वो फुटबॉलर। क्यों? रोनाल्डो इंग्लिश बोलता है? नहीं, कभी भी नहीं बोलता। जब भी बोलता है अपनी ज़बान में ही बोलता है। क्यों? हम क्या, रोनाल्डो को पूरी दुनिया जानती है, इतना उसका फेम है, लेकिन वो भी अपनी ज़बान बोलता है। फिर वो ये कहे कि नहीं यार मैं अपनी ज़बान नहीं बोलता, मुझे तो इंग्लिश बोलनी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि वो ये जितने भी मुल्क है, आप गौर भी करें तो जिस मुल्क ने भी तरक्की कभी हासिल की है उसने पहले अपने कल्चर को प्रमोट किया है, इसी वजह से वो तरक्की याफ्ता मुल्क बना है। ऐसे नहीं हुआ कि हम वो कहते नहीं है कि एक मिसाल थी किसी के जो भेड़ थी वो शेर के कदम सीख रही थी और अपने कदम भी भूल गई। ठीक है, उसके कदम पे चलना सीख रही थी और फिर अपने कदम भी भूल गई। तो मिसाल शायद थोड़ी गड़बड़ हो, लेकिन मिसाल देना चाहता हूँ कि दूसरे के नक्शे कदम पे ना चले, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि वो हमें आगे कहाँ पर ले जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपनी ज़बान, अपने कल्चर, इसको प्रमोट किया करें। थैंक यू। जी आ जाए। दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ गए, यानी कुछ कहते हैं कि इंग्लिश होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि उर्दू होना चाहिए। मैं दोनों को फेवर करता हूँ, इंग्लिश भी होना चाहिए और उर्दू भी होना चाहिए, लेकिन इसके केसेस मुख्तलिफ हैं। यानी सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ना कि हमारी कुछ आबादी जो है वो उर्दू को फेवर करते हैं और कुछ इंग्लिश को। इसके बजाय अगर हम एक को फेवर करें, अगर उर्दू को करते हैं तो फिर उर्दू होना चाहिए, ताकि क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अगर ज़्यादा आबादी एक चीज़ पे फोकस करेगी तो उससे मुल्क भी तरक्की करेगा। और अगर ज़्यादा कहते हैं कि इंग्लिश होना चाहिए तो फिर उर्दू की जगह पे हमें इंग्लिश को अहमियत देनी चाहिए। और इंग्लिश जो है ये पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी तारीख बहुत पुरानी है। हिंदुस्तान में 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उसके बाद इंग्लिश का यहाँ पे मतलब है वो रिवाज शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग इंग्लिश को सीखते चले गए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ज़बान पर मुतफ़िक हो जाए, मेजॉरिटी आबादी। अभी हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो इंग्लिश में लिखी हुई है और ज़्यादातर जो हमारी आबादी है, स्पेशली जो रूरल एरिया की है, वो इंग्लिश को नहीं समझ सकते। इसलिए मादर के साथ कहते हो, अक्सर जो हमारे टीचर है, स्टूडेंट तो अलग बात है, ज़्यादातर उनका टोटली रटा होता है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो, जो भी सब्जेक्ट उनका रटा होता है। उनकी जो मेन रीज़न होती है वो होती भी यही है कि वो उर्दू को सही नहीं समझ सकते, फिर इंग्लिश को किस तरह समझें, क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पे कोई माहौल नहीं है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और होनी चाहिए, तो इसके लिए फिर प्रॉपर प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ताकि हुकूमत सरकारी सतह पर एक ऐसे कोई अकेडमी वगैरह कायम कर दे और इसके लिए मतलब है लोगों में इस चीज़ को उजागर करेंगे
फिर इंग्लिश की तरफ वो आ जाए, ताकि हम एक बात पे मुतफिक हो जाए। और इस तरह फिर अगर इंग्लिश हो गई तो फिर कोर्सेज भी ज़्यादातर इंग्लिश में होने चाहिए। और जिस तरह आप मेजॉरिटी कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर होते हैं वो उर्दू में होते हैं, तो फिर वो भी इंग्लिश में होने चाहिए, ताकि हम एक चीज़ पे टोटल फोकस करके तरक्की हासिल कर सकें। ज़बान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उर्दू चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, कौन ज़बान थी और है भी, लेकिन अगर हम समझते हैं कि उससे हमें मौजूदा हालात को देखते हुए उससे तरक्की नहीं हो सकती, तो फिर हमें इंग्लिश को पे फोकस करनी चाहिए। और हमारे जो मतलब है यंग जनरेशन स्पेशली, उसकी वैसे भी जो ज़्यादा प्रायोरिटी वो है भी इंग्लिश को, तो फिर इंग्लिश के लिए एक प्रॉपर माहौल बनाना चाहिए, ताकि हम ये रटों से जान छूट सके और प्रॉपर कंसेप्ट की टीचिंग और लर्निंग हो सके। जी, आज के इस लेक्चर में हमने लेक्चरेट के मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखवाए हैं और इस पर डिस्कशन कराई है। आखिर में इस दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान को उरूज अता फरमाए और हर मैदान में पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।